the development model. Critics of development have pointed out that the kind of development model which have been adopted in many countries has proved very costly for the developing countries. The financial cost have been enormous, putting many countries into long-term debt. Africa is still suffering from the enormous debt which is run up borrowing from the richer countries. The gain in terms of growth have not been and poverty and disease continue to plug द कॉन्टिनेंट। अब विकास के मॉडल की अगर हम आलोचना करते हैं तो डेवलपमेंट ने आलोचकों का ध्यान दिलाया है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे डेवलपमेंट के तरीके से डेवलपमेंट के मॉडल को अपनाया गया है। वह डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है, इसमें इको बहुत अधिक लगी है और कुछ ऐसे भी हैं जो कर्ज से दब भी गए हैं। अफ्रीका अभी तक अमीर देशों के लिए काफ़ी कर्ज के तले दबा हुआ है। डेवलपमेंट के रूप में अगर उसको उपलब्धि मिली है तो कर्ज के अनुरूप नहीं रही है। पॉवर्टी और डिजीज ने अभी भी इन कॉन्टिनेंट को अपनी चपेट में ले रखा है। Now the social cost of the development. The model of the development has also had high social cost, and large number of people have been displaced from their homes and locality due to the concentration of big dams, industrial activities and mining activities or other projects. Displacement results in the loss of livelihood and increase the improvement in the rural agriculture, and communities are displaced from their traditional occupation and reason they end up at the mercy of society, swelling the large number of urban and rural poor. Traditional skill acquired over an extended period may be lost. There is also a loss of culture because when people are localized, they lose a whole way of community life. Such displacement has led to struggle in many countries. नौ डेवलपमेंट के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। अन्य चीज़ों के अलावा जैसे डैम बनाना, इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ है या फिर माइनिंग की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों से एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर आना पड़ा, क्योंकि आजीविका खोने और पॉवर्टी की वृद्धि के रूप में ये सामने आया है। अगर ग्रामीण खेती कम्युनिटी अपनी परंपरागत पेशे और क्षेत्र से डिस्प्लेसमेंट होते हैं तो वो सोसाइटी के हैसियत चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। तो लंबी ड्यूरेशन के बाद में ये जो परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं और कल्चर का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी कम्युनिटी, अपनी लाइफस्टाइल को खो बैठते हैं और नए प्लेसमेंट में अनेक देशों की संघर्ष को जन्म। इसी प्रकार प्लेसमेंट ने अनेक देशों में इन स्ट्रगल को जन्म दिया है। Displaced people have not always accepted their fact and possibilities. You may have heard about the Narmada Bachao Andolan, which has been led movement against the Sardar Sarovar Dam on a river Narmada for many years. The support of this big dam claimed that it will generate electricity, help irrigate large area of land, and also provide drinking water to the desert area of Kutch and the appointments of the dam dispute this claim. They claim that almost 1 million people have been displaced. They have lost their land and through submersion in the concentrate this and lost their livelihood. Most of these people belong to the tribal and the Dalit communities, whose constitute some of the most underprivileged group in the country. Some even argue that the dam would gradually upset an ecology balance, some raise large tractor of the forest. Now, द डिस्प्लेसमेंट ने लोगों की इस नियति को हमेशा के लिए निष्क्रियता से स्वीकार कर लिया है, जैसे कि हमने पढ़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। और नर्मदा नदी पर या सरदार सरोवर परियोजना के तहत होने वाले डैम्स के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है।
तो बड़े डैम्स के इन सपोर्टर्स का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, बड़े इलाकों में इरिगेशन करने के काम आएगा। जैसे कच्छ है, कच्छ के रेगिस्तान में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। और डैम्स के विरोधी जो हैं अपोजिशन में, वो इस चीज़ के लिए कहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन डूबने के कारण, अपना लाइफ स्टाइल छीनने के कारण भी 10 लाख लोगों से अधिक लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो जनजाति के हैं या फिर दलित समुदाय के कम्युनिटीज़ के हैं और कंट्री के अति वंचित समूह में आते हैं। तो इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि विशाल जंगली भूभाग जो है ये बांध में डूब जाएगा, जिससे इको संतुलन या बैलेंस बिगड़ जाए।